हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर वी कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एसवीएम योगा एंड हेल्थ साइंस कॉलेज मुजफ्फरनगर. Today I will teach to you about the income tax. You know very well that income tax is a direct tax. Especially there are two categories of tax, a direct tax and indirect tax. Here start. Especially heads of income, especially five heads of income. First, say income from salary. Second, income from house property. Third is profit and gains of business or profession. Fourth is capital gains. And finally, income from other sources. इन सभी इनकम के टोटल से एक व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है. जीटीआई इस जीटीआई के अंतर्गत एक व्यक्ति की इनकम में से जो डिडक्शन दी जाती हैं वो अंडर 80 दी जाती हैं. बट इससे पहले हियर इज ए हियर इज ए इनकम टैक्स रेट अप टू इफ ए रेजिडेंट more than 60 year but not more than 80 year up to income. Here is income slave up to 3 lakh, no tax. Next 2 lakh 5% tax, and on next 5 lakh to 20%. On the balance above is 10 lakh 30%. And who is 60 year or more at any time during the previous year for the assessment year 2020 and 21, income tax slab is net income slab up to 5 lakh no tax, next 5 lakhs 20% tax, and on the balance above is 10 lakh 30%. And tax rate applicable to any other individual or HUF and association of person. Net income slab up to 2,50,000, rate of income tax nil. On next 2,50,000 5%, and on next 5 lakh 20%. On the balance above is 10 lakh 30%. And here is given surcharges. 10% of income tax if net income exceeds rupees 50 lakh but not more than 1 crore. 50% of income tax if net income is more than 1 crore but not more than 2 crore. And 25% of income tax if net income is more than rupees 2 crore but not more than 5 crore. And 37% of income tax if net income is more than 5 crore. Health and education share. In case of every individual HUF, AOP and BOI, a health and education shares at the rate of 4% of income tax and surcharge. And here is given deduction covered under section 80C to 80U. यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं एक व्यक्ति को टोटल इनकम से जो डिडक्शन दी जाती है वो अंडर सेक्शन 80C से 80U तक है. हियर इज फर्स्ट वन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इनकम. Deduction refer to the one must account on their income, and through the income he do get the benefit by allowing education. Deduction are also benefits in two ways. First, one on expenditure and second on income. Deduction first here is first deduction in under section 80C. 80C के अंतर्गत एक व्यक्ति टोटल इनकम से जो डिडक्शन प्राप्त कर सकता है उसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है. 80C में व्यक्ति अपना खर्च जो कर सकता है वो लाइफ इंश्योरेंस,
लाइफ इंश्योरेंस में उसका अपना इंश्योरेंस और अपने परिवार का वो व्यक्ति प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में उसका खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति अपनी बच्चों की जो ट्यूशन फीस में खर्च करता है उसका, और पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस and other investment. The aggregate amount of deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD first shall not exceed 1,50,000. In total deduction में मैक्सिमम छूट एक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक मिल सकती है। नेक्स्ट डिडक्शन इज अंडर सेक्शन 80CCC. Deduction in respect of payment of premium of annuity plan of LIC or any other insurer. Deduction is available up to maximum of rupees 1,50,000. And next deduction 80CCD. Deduction of deduction for contribution in pension scheme. Maximum deduction is 50,000. And contribution by employer in person, contribution by employer in pension scheme notified by the government to the extent of 10% of salary. Next deduction is 80CCG. Deduction in respect of investment made under an equity saving scheme. Maximum deduction available here is 25,000 और 50% of such an investment. इन दोनों में जो कम होगा उसकी छूट 80CCG में दी जाएगी. And next deduction is 80D. एक व्यक्ति को मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के संबंध में डिडक्शन दी जाती है। यदि एक व्यक्ति अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करता है तो उस पर 30,000 रुपये तक की सीनियर सिटीजन को और अदर को 25,000 तक की छूट दी जाती है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स, फादर और मदर. Maximum deduction 30% for again senior citizen and 25,000 in other cases. And next deduction is 80DD. Medical treatment of a dependent person with disability. यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका आपके द्वारा ट्रीटमेंट कराया गया है, तो इसके संबंध में आपको 1,25,000 की छूट दी जाएगी और अन्य कंडीशन में मैक्सिमम डिडक्शन 75,000 होगी. नेक्स्ट डिडक्शन इज 80DDB. 80DDB की मैक्सिमम डिडक्शन 40,000 है, जो यदि एक्चुअल पेमेंट जो किया गया है किसी डिपेंडेंट पर्सन के ऊपर, तो इसकी मैक्सिमम डिडक्शन आपको 40,000 तक होगी. एंड नेक्स्ट डिडक्शन इज 80E. 80E के अंतर्गत मैक्सिमम डिडक्शन only interest on loan but not the principal amount. Deduction allows in 8 installment. ये इंस्टॉलमेंट जिस साल लोन लिया उससे साल से लेकर अगले 8 साल तक की ये डिडक्शन आपको दी जाती है. एंड नाउ हियर इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट डिडक्शन ऑफ 80G. 80G स्पेशली ये डिडक्शन एक व्यक्ति द्वारा दिए गए दान के संबंध में है. एक व्यक्ति अपनी आय में से जो दान देता है उसके संबंध में छूट दी जाती है, परंतु यह दान किसी भी तरीके से कैश के अलावा अन्य किसी फॉर्म में यदि दिया जाता है तो उसकी छूट नहीं होगी.
जैसे कि कपड़े दान में दिए जाते हैं तो उसकी छूट नहीं दी जाएगी, सामान दान में दिया जाता है उसकी छूट नहीं दी जाएगी, केवल नकद दान में दिया जाता है तो उसकी छूट दी जाएगी। परंतु इस छूट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट, वे दान जहां पर दिए गए दान की 100% राशि की छूट मिल जाती है। स्पेशली ये दान नेशनल डिफेंस फंड में और नेशनल चिल्ड्रन फंड में है। इनमें दिए गए दान की राशि का 100% राशि की छूट ATG में दी जाती है। सेकंड कैटेगरी में 50% डिडक्शन ऑफ डोनेशन, जो दान आप देते हैं उस दी गई राशि का 50% ही छूट दी जाती है। स्पेशली ये दान प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड एंड अदर प्राइम मिनिस्टर फंड्स में है। थर्ड कैटेगरी है वो जहां पर 100% दान की छूट मिलती है, मगर यह दान की राशि आपकी टोटल टोटल इनकम के 10% से अधिक राशि दान में ना दी गई हो। अर्थात जो राशि आपके द्वारा दान में दी जाती है वो आपकी नेट इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी 10% दान की राशि 11,000 बनती है और आपने दान 12,000 दिया है तो ऐसी कंडीशन में आपको 11,000 की छूट मिलेगी। लेकिन यदि आपकी नेट इनकम का 10% 10,000 होता है और दान आप 9,000 देते हैं तो आपको छूट 9,000 दी जाएगी। एंड फोर्थ इज 50% डिडक्शन ऑफ द एडजस्टेड इनकम। यहाँ पर भी आपको आपके द्वारा दिए गए दान की जो राशि है वो आपके एडजस्टेड इनकम के 10% के 50% से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर जो राशि आपको दान में की है वो नेट इनकम के 10% के 50% से ज़्यादा की छूट इस पर नहीं मिलेगी। एंड नेक्स्ट डिडक्शन इज ATGG। यदि आप मकान जो आपने किराए पर लिया है उसका किराया जो पेड करते हैं तो उसमें मैक्सिमम आपको 24,000 रुपये तक की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D दी जाती है। And next deduction is 80GGA, donation for scientific research। यदि आप कोई दान किसी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को देते हैं तो यहाँ पर आपके दान का जो एक्चुअल में दिया उसका 100% छूट दी जाती है। 80GGC, यहाँ पर दान यदि कोई कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पर भी 100% छूट दी जाती है। 80RRB, डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी, मैक्सिमम डिडक्शन इन 3 लाख। यदि आपको रॉयल्टी प्राप्त होती है उस पर डिडक्शन 3 लाख रुपए तक की है। डिडक्शन 80QQB, यदि आप कोई बुक किसी किताब को लिखते हैं तो उसकी रॉयल्टी पर भी आपको 3 लाख तक की डिडक्शन है। एंड इज अनदर डिडक्शन 80TTA, जो आपको आपके सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है इस पर 10,000 रुपये तक के ब्याज की कर मुक्ति आपको दी जाती है। और नेक्स्ट इज 80U। 80U की डिडक्शन आपको यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको 75,000 रुपये तक की एक अतिरिक्त छूट इनकम टैक्स में मिलती है। लेकिन यदि आप की डिसएबिलिटी मोर देन 75% है तो ये डिडक्शन 1,25,000 होगी, लेकिन इसका सर्टिफिकेट CMO द्वारा जारी किया जाता है। ओके, थैंक यू सर।